Good morning, students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed the second part of chapter number 5th, that is death of a partner. In this chapter, first of all, we discussed the introduction of death of a partner. Thereafter, we discussed the difference between retirement of a partner and the death of a partner, as well as we also discussed the various accounting treatment required when any partner dies. So the important part related to this topic, that is calculation of profit, you know very well there are basically two methods calculating of profit given by firm to the deceased partner. You know very well when any partner dies, so the date of death is not pre-decided. So generally it will fall beginning of the year, mid of the year, or the end of the year. So in this situation, firm provided profits to the deceased partner from the beginning of the accounting year till the date of his death. You know very well, company calculate or find their profit and loss at the end of the particular period. But when any partner dies, so company has a responsibility to pay a profit of those period immediately to the deceased partner executor's account. So basically, the calculation of profit is calculated by two following method, that is time basis and the turnover basis. And you know very well, in the time basis, first of all we calculate the period in months or in days from the beginning of the accounting year till the date of his death. Thereafter we calculate the previous year profit or the average profit which are given in the question, and the number third, his share of profit. So basically, according to the time basis, the profit provided to the deceased partner executor will be calculated on the following three steps. The first one, calculate the previous year profit or average profit as per the demand of question. Number second, period in days or in months from the beginning of the accounting year till the date of his death. And number third, his share of profit. And after that we find the profit provided by firm to his deceased partner. The number, let's discuss it. Let's discuss the one more additional example related to this topic. The illustration 49, ABC were partner in a firm sharing profit in the 3:2:1 ratio. The firm closes its books on 31st March every year. B died on 12 June 2007. Okay. On B's death, the goodwill of the firm valued at 60,000. On B's death, his share in the profit of the firm till the date time of his death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was 1,50,000. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:1. ओके. ए बी जो है डेथ हो गई बी की 12 जून 2007 की. तो यू नो वेरी वेल कि 12 जून है. सो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको हिंट दिया था कि जब भी पीरियड कंप्लीट नहीं होता, मंथ कंप्लीट नहीं होता, जैसे अगर ये 12 जून की जगह 30 जून को डेथ होता, तो वी कैन ईजिली काउंट द पीरियड इन मंथ्स, दैट इज़ अप्रैल, मई, जून. But in this situation, the date of death is 12 June. So we cannot calculate the period in months. So in this situation, we calculate the period from the beginning of the accounting till the date of his death in days, and it will be subtracted by 365. If we calculate a period in month, so it will be subtracted by divided by the 12. But if we calculate the period in
days, it should be divided by 365 days, because in 1 year 12 months, in 1 year 365 days. So first of all, in this question given also additional information as a B's death, the goodwill of the firm was valued 60,000. B की डेथ के समय उसकी गुडविल है 60,000. तो यू नो वेरी वेल इट इज़ अ वेरी कॉमन एडजस्टमेंट. सो यू नो वेरी वेल कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000 एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट कि व्हेन एनी पार्टनर रिटायर और डेथ dies. So in this situation the remaining partner provides a compensation to the deceased partner in their gaining ratio. So in this situation you know very well what is the general entry. General entry will be containing partner's capital account debit to deceased partner capital in their gaining ratio. ओके सो इसमें हम लोग बाद में जनरल एंट्री करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाउ वी विल कैलकुलेट अ गुड प्रॉफिट ऑन द डेथ ऑफ बी. सो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछा है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल की एज वेल एज बी शेयर ऑफ प्रॉफिट की जब उसकी डेथ होती है. और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. देख लीजिए आप, दो मार्क्स जो हैं गुडविल के होंगे और 2 मार्क्स जो हैं प्रॉफिट के होंगे. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये भी बता दिया है कि जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे on B's death his share in the profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of the previous year profit which was 1,50,000. इससे प्रीवियस वाला हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था तो उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड होगा, बट इस क्वेश्चन में किस पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे. तो दिस थिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि हम पास्ट फ्यू ईयर्स के हमें एवरेज निकाल के प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन अगर कह देगा सिर्फ प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट लो तो उस पे लेंगे, एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. प्लीज़ इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन विच वी कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर. सो द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज़ 1,50,000 एंड ही डाइज 12 जून 2007. सो यू नो द अकाउंटिंग ईयर हमारी स्टार्ट कब से होती है, 1 अप्रैल. तो इसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2007 को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द डेज. सो देखिए इसमें कैलकुलेट किया गया है 73 डेज. व्हेन यू काउंट इट इज 73 डेज. हाउ इट विल बी फाइंड एट. सो थोड़ा सा मेहनत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दी अप्रैल. यू नो वेरी वेल अप्रैल में कितने डेज होते हैं, गुड 30 डेज. मई में 31 और जून में वो कितने डेज़ रहा है बिजनेस में, सर 12 को डेथ हुई उसकी तो 12 डेज़ रहा होगा, 73 डेज. ओके सो इस तरह से आप डेज़ कैलकुलेट करोगे बिकॉज 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल 30 डेज़, 1 मई टू 31 मई दैट इज़ 31 डेज़ एंड 1 जून टू 12 जून. सो द 12 डेज. तो टोटल डेज़ का उसको कितने डेज़ की प्रॉफिट मिलेगी, 73 डेज़ की. एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द बी शेयर ऑफ प्रॉफिट. यू नो वेरी वेल कि formula is first of all we find out the previous year profit, that is 1,53,000. Second, in this question the period will be given in the days. So the 73 divided by 365, क्योंकि डेज़ में हमने पीरियड कैलकुलेट किया तो डिवाइड 365 से करेंगे. अगर डेज़ मंथ में कैलकुलेट करते तो 12 से डिवाइड करते. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. यू नो वेरी वेल कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और तो इसके हिसाब से बी का रेशियो हो जाएगा 2/6. सो हमने बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया 10,000. इतना क्लियर हो गया. अब पहली बात हो गई. दूसरी बात गुडविल. ये इट इज़ वेरी इजी. द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 और उसका शेयर कितना बनेगा 20,000. अब हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की. तो यू नो वेरी वेल यहाँ पे पार्टनर हैं ए बी सी 3:2:1 के लिए और फिर बी की डेथ हो जाती है तो ए सी का फ्यूचर रेशियो क्या होगा, सर 3:1 ही होगा बिकॉज यहाँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो इन दिस सिचुएशन द ओल्ड रेशियो विल बी टेकन एज द न्यू रेशियो एज वेल एज द गेनिंग रेशियो. और इससे आपका एक बात और याद आई होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कॉन्टीन्यू रहता है वैसे का वैसे ही रहता है तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, पीएल सस्पेंस से करते हैं. ओके और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो सिचुएशन में एंट्री कैसे पास होती है, एज सेम एज इट इज़
गुडविल यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिसीज पार्टनर। सो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। तो गेनिंग रेशियो बदल गया 3:1। सो गुडविल जो है वो 20,000 है, उसे ए और सी प्रोवाइड करेंगे 3:1 में। सो ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल, ओके। एंड सेकेंड एंट्री विल बी रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, ओके। सो द जनरल एंट्री, the first general entry is A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital. The total goodwill provided to the B, that is 20,000, and it will be adjusted by A and B in their gaining ratio, and gaining ratio 3:1. So that's why 15,000 and 5,000. And second, you know कि B की डेथ हो रही है, उसको प्रॉफिट भी देनी है। कब से कब तक की? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। सो प्रॉफिट कितनी आई थी? 10,000। तो उसको हमने किससे एडजस्ट किया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट किया? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज होता तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते? सेम एज इट इज़ वैसे ही जनरल एंट्री पास करते जैसे गुडविल की जनरल एंट्री पास की गई है। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता कि इसमें PSR चेंज हो गया है, सो सिचुएशन में जो जनरल एंट्री पास होती है वो होती गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, ओके। सो हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया, दैट इज अ टाइम बेस्ड मेथड, ओके ओके। नेक्स्ट लेट्स वी मूव टू द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज turnover or sales basis. In this method we have to take into consideration the profit and the total sales of the last year. शुरू में ही बता दिया कि इसमें हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। लास्ट ईयर की प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल्स को कंसीडर करते हैं, और फिर प्रॉफिट देयर आफ्टर प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स फॉर द लास्ट ईयर एंड सेल्स अप टू द डेथ ऑफ डेथ। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो चीज़ें पता कर लेते हैं, तीन चीज़ें, दैट इज़ लास्ट ईयर की प्रॉफिट क्या थी और लास्ट ईयर की सेल्स क्या थी, ओके। यानी हमने लास्ट ईयर कितना सेल्स किया और लास्ट ईयर हमारी प्रॉफिट क्या थी। फिर हम बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी जितने दिन वो हमारे बिजनेस में रहा, जो भी पार्टनर की डेथ हुई है, उतने दिन में कितनी सेल्स हुई है, किसकी? फर्म में कितनी सेल्स हुई, ओके। सो उस बेसिस पे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ओके। यानी सपोज अगर 1 अप्रैल को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होती है और उसकी डेथ होती है 13 जून को, सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना सेल किया वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम को उतना इसमें मायने नहीं रखते, इसमें सेल्स को बेस लेते हैं। अब हम करते क्या, हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल्स एंड सेल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। यानी जिस पीरियड में वो वर्क किया है उस पीरियड में फर्म की सेल्स कितनी रही है, और उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं कि उस ड्यूरिंग द पीरियड ईयर का प्रॉफिट कितना होगा। सो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, प्रॉफिट बना हमारा, प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसको मैं साफ साफ आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ तो और क्लैरिटी आएगी आप लोगों की, यस। तो टर्नओवर मेथड में प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स, वो भी कब से कब तक, बिगनिंग से लेकर डेथ तक की। यानी जब से करंट ईयर की स्टार्टिंग हुई है तब से लेकर जब तक उसकी डेथ हुई है उसके बीच में हमारी फर्म की सेल्स क्या थी, सेल्स मीन्स टर्नओवर। So formula is last year profit into last year sales into current year sales from the beginning of the accounting year to the date of his death। इतना निकालने के बाद हम उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पार्टनर डेथ करता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत इजी पड़ेगा, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिक इलस्ट्रेशन पे चलते हैं।
Illustration number 50. A, B, C are sharing profit in the ratio of 3:2:1. C dies on 13 June 2011. Accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year ending 31st March 2011, 6 lakhs. Sales from 1st April to 30 June 2011 amounting to 2,40,000. The profit for the year ending 31st March 2011 amounted to 30,000. Calculate deceased partner share in current year's profit. सो उसमें कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर, उनका शेयर है 3:2:1. ओके. सी डाइज हो रहा है 30 जून को, तो कितने महीने में वो डेथ कर जा रहा है? तो अप्रैल मई जून 3 महीने बाद वो डेथ कर जा रहा है. अब इसकी प्रॉफिट निकालनी है, तो प्रॉफिट के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? वी हैव अ इंफॉर्मेशन. फर्स्ट दी लास्ट ईयर की सेल्स हमारे पास है. लास्ट ईयर हमारी सेल्स कितनी हुई थी? 6 लाख. लास्ट ईयर की प्रॉफिट कितनी दी हुई है? 30,000. यानी 6 लाख हमने सेल किया तो हमें प्रॉफिट कितनी हुई? 30,000. और करेंट ईयर की सेल्स कितनी है? करेंट ईयर की सेल्स कब से कब तक की? बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, यानी 3 महीने की सेल्स है 2,40,000. यानी वी हैव ऑल द 3 इंफॉर्मेशन विच आर नीडेड टू कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट इन टर्नओवर मेथड. सो हमने क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल्स. लास्ट ईयर की सेल्स है 6 लाख इंटू 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई हिज शेयर ऑफ, जो डेथ कर रहा है. डेथ कौन कर रहा है? सी. सी का शेयर क्या है? 1/6. सो उसको सॉल्व करिए. ये आएगा आपका 404011. कुछ मिस्टेक हुई. 30,000 डिवाइड 6 लाख. ओके. 500 इंटू 50 इंटू 24 4. ओके. And the next one is 12,000 into 1/6, that is 2,000. So the answer also will be 2,000. You can see it. The answer will be 2,000. So उसमें हमने क्या क्या किया? First of all, we take a formula 30,000 divided by 6 lakh into 2,40,000 multiplied by 1/6. ये हमने भी किया. यानी formula is formula of profit in turnover method is last year profit divided by last year sales multiplied by current year sales from the beginning of the accounting year till the date of his death, bracket closed, his share of profit. his share of profit का मतलब किसका share of profit की बात हो रही है? जो पार्टनर डेथ कर रहा है. सो आंसर क्लियर है. सो बेसिकली हम लोगों ने दोनों मेथड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की, दैट इज़ टाइम मेथड एंड टर्नओवर मेथड को डिस्कस कर लिया है. सो लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू बना लेते हैं, और इस ओवरव्यू को आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दिस माइंड मैप हेल्प्स टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हेल्प्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट very easily. So let's discuss it. So in the case of death of a partner, how we will calculate the profit? You know, there are basically two methods, the time method and turnover and sales method. In the time method, the formula of profit is previous year profit or average profit. ये जो previous year profit है, average profit है, ये क्वेश्चन की डिमांड होगी. क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू द पॉइंट टू द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट. सेकंड इज मंथ डिवाइड बाई 12 और डेज अपॉन 365. ये जो मंथ और ये है, ये पीरियड है. वो पीरियड कब से कब तक का पीरियड है? यानी ड्यूरेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 30 जून को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो एक अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग है 1 अप्रैल और 30 जून उसकी लास्ट है. तो मंथ में कितने उसके डेज कितने मंथ कंप्लीट हो गए उसकी फर्म में? 3 मंथ्स. सो 3/12. अगर उसी तरह से हम डेज़ में काउंट करते हैं, सो डेज अपॉन 365 डेज. आफ्टर डैट
हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर उसका 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/10 है, जो भी उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो बेसिकली सिंपली वे में हम आपको कम्युनिकेट ये करना चाहते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय टाइम मेथड व्हेन एनी पार्टनर डाइज. द फॉर्मूला इज previous year profit into average profit, sorry, previous year profit or average profit into months upon 12 or days upon 365 into his share of profit. Okay, let's move to the second method. The second method of calculation of profit is turnover and sales method. In this method, you know, इस फॉर्मूले में पहले ये चीज़ गड़बड़ है, इसको आप लिखिएगा ही मत, ये चीज़ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट लिख दी गई है बाई फॉल्ट. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट. द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज, द फॉर्मूला इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मल्टीप्लाइड बाई करेंट ईयर टर्नओवर. ये करेंट ईयर टर्नओवर का मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग, ये मतलब है पीरियड का. अब देखिए, जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो वहाँ पे पीरियड का मतलब ये है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. सो ये वर्ड इतना, लाइन इतनी लंबी है, इसलिए आप उसको कंसाइज कर लीजिए कि पीरियड का मतलब यहाँ पर है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. ओके, सो हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट इन सेल्स मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, it will be divided by sales of the previous year, then multiplied by current year turnover from the beginning of the accounting year till the date of his death, and after that we find the deceased partner share of profit. उसके बाद हम उसको इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया. ओके, नाउ वी विल मूव टू द important part of this topic, how we will record this profit in our books of account, that is accounting treatment of profit. जैसा आप लोगों ने अभी बताया कि आपको जब भी कोई पार्टनर डेथ करता है तो उस केस में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली 2 मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, टाइम मेथड एंड टर्नओवर मेथड. अब उस प्रॉफिट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, हाउ वी विल रिकॉर्ड these profit in our books of account. So there are basically 2 important instruction given by me to record such kind of profit in our books of account. The first case is new profit sharing ratio of remaining partner does not differ from their old profit sharing ratio. यानी जब remaining partner का new profit sharing ratio उनके old profit sharing ratio से different नहीं होता है. ये बात मैंने पहले भी आपको हिंट के थ्रू बताई है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ. सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका रेशियो है 1:1:1. ओके, और सी डाइस कर गया, यानी सी की डेथ हो गई. आफ्टर डैट ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो भी 1:1, यानी कि जो ओल्ड रेशियो था ए और बी का, वही रेशियो ए और बी का नया भी है. यानी देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द new profit sharing ratio of and old profit sharing ratio between remaining partner. So in this situation you adjust the profit through PL suspense account. उस तरह के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किए. सो इस सिचुएशन में एंट्री क्या पास होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट द जनरल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ओके, ओके, और अगर लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है. द एंट्री विल बी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस. सो बेसिकली द फर्स्ट सिचुएशन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट. सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय टाइम मेथड और टर्नओवर मेथड. यानी सबसे पहले हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे टाइम मेथड से या टर्नओवर मेथड से. ओके, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री करेंगे. जनरल एंट्री करने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं. इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट डिफरेंट फ्रॉम देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर है, तो सिचुएशन में प्रॉफिट के केस में पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस के केस में डिसीज पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की जनरल एंट्री पास करेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी। या जो मैंने अभी आपको पढ़ाया लास्ट वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन और आज के वीडियोज़ में जो कुछ क्वेश्चन बताए हैं, आई होप ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, पहले मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, और अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप उसको इंटररिलेट करके घर पे बैठ के उन सारे क्वेश्चन को खुद से करिए। ओके, सो द सेकेंड केस related to this topic, that is NPSR, that is not new profit sharing ratio of remaining partner different from their old profit sharing ratio। यानी कि सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 1:1:1, और सी के डाइज होने के बाद ए और बी का नया रेशियो जो है वो हो जा रहा है 2:1, 3:1, 1:2, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी वो 1:1 नहीं रह रहा है, चेंज हो जा रहा है। यानी अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है और रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी उनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, देयर इज अ नथिंग चेंज इन PSR, so in this situation profit are adjusted to profit and loss suspense account. But if any partner dies and the old ratio or and new ratio between continuing partner is different, so in this situation we adjust the amount of profit same as the goodwill। ये शायद एक वर्ड ही आपके लिए काफ़ी है कि इस सिचुएशन में हम जैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह की ट्रीटमेंट करें, एज लाइक इट इज़ गुडविल की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, यू नो, प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और डिसीज पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, और उसके लिए हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जो पार्टनर गेन करेगा उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर डिसीज्ड होगा यानी जिसकी डेथ होगी उसको क्रेडिट करेंगे। एंड एज वेल इन द लॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू एंड ओल्ड में डिफरेंशिएशन होता है तो सिचुएशन में गेनिंग रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी, डिसीज पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, और लॉस के केस में डिसीज पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी और गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो बेसिकली आज के इस पूरे वीडियोज़ में हम लोगों ने डेथ ऑफ ए पार्टनर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, को कवर करने की कोशिश की है। ओके, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड द फ्यू इलस्ट्रेशन टू हेल्प दी to understand the concept of calculation of profit and how it will be recorded in our books of account. So basically अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है और उस केस में फर्म जो है उस डेथ डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट प्रोवाइड करता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। सो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम उसकी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टाइम एंड टर्नओवर मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एंड देयर आफ्टर उसको रिकॉर्ड करने के लिए, यानी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का ओके सेम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। और अगर इज देयर एनी चेंजेस, सो उस सिचुएशन में हम लोग गुडविल की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, यानी गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं और जो डिसीज पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर के मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही एलिमेंट नहीं होगा, दे आर वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट, यू नो वेरी वेल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह। सो आई होप कि आज हम लोगों ने जो भी स्टडी की है, इट विल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट related to this topic, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और उससे पहले आप ये
जो फॉर्मूला है उसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।